basic concepts of chemistry. In the previous lecture, I told you about the basic concepts regarding mole concept, that what is molecular mass, atomic mass, gram molecular mass. These all terms are very important, students, and you should have a complete idea regarding that. So in today's lecture, we will proceed further. In this lecture, we are going to solve numericals. More numericals we are going to solve today, and today we are going to solve the numericals of the previous section also, the molecular mass and all that, and we are going to discuss about the numericals regarding moles, atoms and molecules. So let us start with a quick revision. These all formulas already I have told you in the previous lecture, so we should have a quick revision. So how you are going to calculate the mass of one atom? The formula was atomic mass divided by Avogadro number, that was 6.02 into 10 to power 23. Second formula was how you are going to calculate mass of one molecule. If there will be mass of one atom, then you will say atomic mass, and if you are going to calculate the mass of one molecule, then the formula will be molecular mass divided by Avogadro number. Third formula was calculate number of atom in the given mass of the element. The formula was mass of element multiplied by Avogadro number divided by gram atomic mass. When atomic mass is expressed in gram, you can say that is gram atomic mass. Then the fourth formula was calculate number of molecules in the given mass of the substance. The formula was mass of substance multiplied by Avogadro number and the molecular mass. These all formulas you have already learned, and now today I will give you more numericals. Then you should solve by your own. मैंने यहाँ पे solve किया है, but आप लोग कोशिश करिएगा कि numericals को खुद भी आप लोग solve करें. So these are some numericals I have given. So today we are going to do this also, and then we are going to do the numericals regarding moles, atoms and molecules. So these three numericals we are going to do. The first one is calculate the mass of the following. First is 1 atom of sodium, 1 molecule of carbon dioxide. Second question is find the molecular mass of glucose. Glucose have the formula C6H12O6, and you have to calculate the mass of one molecule of it. And the last numerical you are going to do is calculate the mass of 1 AMU in grams. AMU was atomic mass unit. So let us start. So our first question is that you have to calculate the mass of the following. Mass आपको निकालना है. First is 1 atom of sodium and the second was 1 molecule of carbon dioxide. तो जब भी आप किसी भी एक एटम का मास निकालेंगे तो द फॉर्मूला इज मास ऑफ वन एटम इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर. So it is very simple. Atomic mass of sodium is exactly 22.99. You can also say it is 23. आप 23 भी बोल सकते हैं. तो सोडियम का एटॉमिक मास है 22.99 और you can use 23 also. And Avogadro number, that is 6.02 into 10 to power 23. So when you are going to solve it, the answer will come 3.80 into 10 to power 23 minus 23 gram. So आपको बच्चों ये ध्यान देना है, न्यूमेरिकल्स को आप जितना करोगे उतना कमांड आपको आएगा. ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है, किस तरीके से पॉइंट को लेफ्ट और राइट हैंड साइड कैसे मूव किया जाता है, तो कैसे पावर बढ़ता है, कैसे घटता है, वो सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट में अपने दिमाग में रख के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा. इट इज़ वेरी सिंपल. Then you have to calculate the mass of 1 molecule of carbon dioxide. यहाँ पे molecule है, तो जब भी आप एक molecule के मास को निकालोगे तो जो भी उस particular molecule में जितने atoms bonded हैं उनके आपको masses को calculate करना है. So mass of one molecule formula is molecular mass divided by Avogadro number, and the first step is that you have to find out the gram molecular mass of carbon dioxide. आपको पहले molecular mass निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का. यू नो दैट मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज देयर. सो 2 into 16. जब आप इसको सॉल्व करोगे सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कम 44 ग्राम. देन पुट अप दिस वैल्यू इन द मॉलिक्यूलर मास. आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाला है और इसको आप मॉलिक्यूलर मास में पुट कर दोगे.
44 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो आंसर विल कम 7.30 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम। Let us solve the second numerical. The second numerical is find the molecular mass of glucose C6H12O6 and calculate the mass of one molecule of it. तो पहला आपको क्या निकालना है कि molecular mass कैलकुलेट करना है ग्लूकोज के लिए। फॉर्मूला इज C6H12O6। यू ऑलरेडी नो दैट कार्बन का जो मास होता है वो एग्जैक्ट जो होता है वो 12.01 होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू लेके मैं आपको करवा रही हूँ, आप 12 भी ले सकते हो। So how many carbon atoms are there? 6 carbon atoms are there. So 6 multiplied by 12.01. How many hydrogen atoms are there? 12. So 12 into 1.008. Exact mass जो होता है हाइड्रोजन का that is 1.008. And how many oxygen atoms are there? There are 6 oxygen atoms. So you will multiply by 6 into 16. जब आप इसको solve करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आएगा ग्लूकोज का 180.156 ग्राम पर मोल। देन अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आप कैसे निकालोगे? द फॉर्मूला वाज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 180.156 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। योर आंसर विल कम, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.992 इंटू 10 टू पावर -22 आएगा। सो न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, आप जितना सॉल्व करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका स्ट्रांग होगा। सो वट एवर न्यूमेरिकल्स आई एम गिविंग, उसको आप सीक्वेंस वाइज, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, आप अपने कॉपीज़ में उसको करिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट को अगर आप लेफ़्ट तरफ मूव करा रहे हैं, तो जितने डिजिट आप लेफ़्ट तरफ मूव कराएंगे उतना आपको एक्सपोनेंट यानी पावर में से उतना आपको प्लस करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, अगर आप डेसिमल के 2 डिजिट तक मूव करा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको एक्सपोनेंट में या पावर में उतना ऐड करना पड़ेगा 2 डिजिट्स। और अगर आप डेसिमल को राइट हैंड साइड मूव करा रहे हैं जितना डिजिट, उतना उसके पावर में से माइनस करोगे। तो इस बात को ध्यान रख के आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज द थर्ड वन, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 AMU इन ग्राम्स। एक एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 AMU इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम। ये मैंने पहले भी बताया आपको। सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 विल बी, आपको एक एटम कार्बन 12 के आइसोटोप का मास निकालना है। सो द फॉर्मूला इज एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एटॉमिक मास 12 होता है कार्बन का और एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.993 इंटू 10 टू पावर -23। देन यू नो दैट 1 AMU इज 1/12। आप देखो यहाँ लिखा है AMU इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मास आपने कितना निकाला? 1.993 इंटू 10 टू पावर 23 कार्बन 12 का। अब इसको आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1/12 से आप इसको सॉल्व करोगे। 1/12 मास है तो इसलिए 1/12 इंटू 1.993 इंटू 10 टू पावर -23 है। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर 1.660 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। सो व्हाट इज द मास ऑफ 1 AMU इन ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप? क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि इसका जब आप 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे द आंसर विल कम 1.60 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम ये नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिगार्डिंग मोल्स। अभी तक जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो मास से कनेक्टेड था। मास में रिलेशन कैसे था कि एक मोल, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का आप मास निकाल रहे हैं एक मोल के लिए, तो वो क्या फॉर्मूला था। अब यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिगार्डिंग मोल्स आपको देखना है। ये 4 फॉर्मूलाज हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी सिंपल। सो लेट अस सी। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल आ सकता है, एटम आ सकता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला है
कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स कैन बी मॉलिक्यूल और एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. सेकेंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू mass of substance in gram divided by molar mass in gram. Third formula is number of moles equal to volume of gaseous substance liquid है at STP, that is standard temperature pressure, divided by 22.4 liter. And the last formula regarding moles is number of molecules or atom equal to number of moles multiplied by एवोगैड्रो नंबर. ये लास्ट फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट फॉर्मूले से ही आया है. तो दीज 4 फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. तो ये न्यूमेरिकल्स आप इससे कनेक्टेड करेंगे और ये सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं बच्चों दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और सिस्टमैटिकली आप उसको अपने कॉपी में लिखिएगा. एंड नेक्स्ट स्लाइड में वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट. जो भी आपने 4 फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो याद रखिएगा कि वो कन्वर्जन है बिटवीन मोल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में. जो भी 4 फॉर्मूला है उसको ध्यान दीजिएगा और अब उसके न्यूमेरिकल्स हम करते हैं. सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज हाउ मेनी एटम्स आर इन 5.5 मोल्स ऑफ एटम ए. द सेकेंड वन इज हाउ मेनी मोल्स कंटेन 4.6 into 10 to power 23 सल्फर एटम. थर्ड क्वेश्चन इज calculate number of moles in the following masses. First is 7.85 gram iron है. iron का मास यहाँ पे दिया है 56. The second is 65.5 माइक्रोग्राम. माइक्रोग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन का निकालना है. नेक्स्ट इज 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिका, सिलिकॉन, दैट इज 28. The fourth question is calculate the number of atoms in each of the following. First is 0.5 mole atom of nitrogen. The second question is 0.2 mole molecules of nitrogen. Okay, and the last question is what volume at STP is occupied by 3.50 gram of nitrogen, and the last is 0.350 moles of oxygen. तो ये सारे इतने न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जो भी पहले आपने पिछले स्लाइड में जो फॉर्मूलाज दिए थे उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे. So let us start, student. Our first numerical was how many atoms are in 5.5 moles of atom A. कोई भी एटम A दिया है उसके 5.5 मोल्स में कितने एटम्स हैं वो आपको कैलकुलेट करना है. So the first formula will be used. Number of moles equal to number of particles. ये पार्टिकल या तो एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है. Divided by Avogadro number, that is 6.02 into 10 to power 23. तो आपको मोल्स पता है लेकिन आपको नंबर ऑफ एटम नहीं पता है. तो अगर आप इस फॉर्मूले में पुटअप करो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम विल बी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. सो नंबर ऑफ मोल्स इज 5.5 एंड द एवोगैड्रो नंबर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर विल कम 3.31210 इंटू 10 to power 24. जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ आप एक एक स्टेप्स को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. जो भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा है, जो भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ा है वो सारे यहाँ पे कैलकुलेशन में काम आएगा. अगेन आप देख लो जब डेसिमल पॉइंट को आप लेफ्ट तरफ मूव करेंगे, जितना डिजिट मूव करेंगे उतना एक्सपोनेंट में ऐड करेंगे. अगर डेसिमल को राइट तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जितने भी डिजिट आप शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट को आप एक्सपोनेंट में माइनस करोगे. तो इस बात को ध्यान रख के न्यूमेरिकल्स करिएगा. सेकेंड वन इज हाउ मेनी मोल्स कंटेन 4.6 into 10 to power 23 सल्फर एटम्स. आपको नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे दिया हुआ है और आपको मोल्स कैलकुलेट करना है. तो सेम फॉर्मूला यूज़ होगा. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 to power 23. सो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम दिया है. जब आप इसको पुटअप करोगे इस फॉर्मूले में 4.6 into 10 to power 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.76 मोल या 7.6 into 10 to power -1 moles. Let us solve the second question. Second question was calculate number of moles in the following masses. आपको मोल्स निकालने हैं, जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट के मासेस दिए हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 7.85 ग्राम ऑफ आयरन. आयरन का मास होता है 56.
सेकेंड फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था दैट वाज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम। हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप यूनिट्स ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं मेंशन करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में मार्क्स कट जाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू मेंशन द पर्टिकुलर यूनिट। ओके, सो यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है 7.85 ग्राम और मोलर मास आयरन का कितना होता है 56। दोनों को सिंपली आप डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर 0.14 मोल्स, और आप इसको 1.4 इंटू 10⁻⁻1 मोल्स भी लिख सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा न्यूमेरिकल आप जब भी करो तो पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से आप पढ़िए और एनालाइज करिए कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर इस पर आपको कमांड आ गया तो इट इज़ वेरी सिंपल, और जो भी कैलकुलेशंस के लिए साइंटिफिक नोटेशन या सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो भी मैंने रूल्स बताए हैं उसको आप ध्यान में रख के न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सो मूव ऑन फॉर द सेकेंड वन, 65.5 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। ओके, माइक्रोग्राम को आपको कार्बन में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 65.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 12। सेम फॉर्मूला लगा है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। मास ऑफ सब्सटेंस कितना है 65.5 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम को आपने ग्राम में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻�6 किया, और आपको पता है कि कार्बन का मोलर मास होता है 12। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे आप, यू विल गेट द आंसर 5.45 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। So let us move on further. Third question, third part. You have to calculate the number of moles for 4.68 milligram of silicon. Silicon का mass यहाँ पे दिया है 28. So the formula you will use, the same formula you will use, number of moles equal to mass of substance in gram divided by molar mass. So mass of substance आपको ग्राम में लिखना है और मोलर मास को भी ग्राम में लिखना है, बट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है 4.68 मिलीग्राम। सो मिलीग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सो यू विल गेट 4.68 इंटू 10⁻⁻3, एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सिलिकॉन, दैट इज 28। यू विल सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट द आंसर 0.16 इंटू 10⁻⁻3, और यू कैन से 1.6 इंटू 10⁻⁻4 moles. Now the fourth question, calculate number of atoms in each of the following. आपको number of atoms कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मोल दिया है 0.5 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन। 0.5 मोल एटम नाइट्रोजन के लिए आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। सो सेम फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा जो आपने पढ़ा है, उसको आप सिंप्लीफाई करो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल कैन बी मॉलिक्यूल और एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, you will get the answer 3.011 into 10⁻23 atoms. Second question is, you have to calculate number of molecules of nitrogen atom. 0.2 mole molecules of nitrogen atom calculate करना है आपको. So same formula will be there, number of molecules or atom will be number of moles multiplied by 6.02 into 10⁻23. सेम जिस तरह से आपने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह से ये भी करना है। तो एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 और मोल्स कितना दिया है 0.2। आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर 1.204 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो मूव ऑन फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम एट STP इज ऑक्यूपाइड बाय। STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फर्स्ट इज 3.50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन जो है वो एक गैस होती है। सो आपको 3.50 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम पता करना है किस पे, STP पे। सो विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस लिक्विड में एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सो इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है क्योंकि आपको आंसर STP में देना है वॉल्यूम को, बट आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही नहीं, यू डोंट नो हाउ you will get number of moles. So how you are going to find out the number of moles? आप किस तरह से number of moles calculate करोगे?
the formula you will use is number of moles equal to mass of substance in gram divided by molar mass. यहाँ पे आप देखो मास दिया है 3.50 ग्राम, नाइट्रोजन का मास दिया है. सो नाइट्रोजन का मास आपको दिया है और आपको पता है कि मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है. तो जब आप वैल्यू रखोगे मास ऑफ सब्सटेंस यानी 3.50 ग्राम और नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28.02, इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मोल्स मिल जाएगा 0.125 मोल्स. और इस मोल्स को यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं. सो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. सो प्रीवियस स्लाइड से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे. नंबर ऑफ मोल्स हमारा आया था 0.125. सो द बेसिक फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैशियस सब्सटेंस इन लिक्विड एट STP डिवाइडेड बाय 22.4. आपने मोल्स निकाल लिए थे और अब हम पुटअप करेंगे वैल्यूज़ को. और यहाँ से जब हम वॉल्यूम ऑफ गैशियस सब्सटेंस लिक्विड एट STP करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4. सो वॉल्यूम ऑफ गैशियस सब्सटेंस लिक्विड एट STP विल बी नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर. सो मोल्स आपने कितना कैलकुलेट किया था 0.125 एंड 22.4. You will simplify and you will get the answer 2.80 liter. So the last question is 0.350 moles of oxygen. आपको इसका वॉल्यूम पता करना है STP पे. सेम वही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैशियस सब्सटेंस लिक्विड एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. अब आप यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में मोल्स दिया है, क्लियर. तो अब आपको डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट अप करनी है. सो वॉल्यूम ऑफ गैशियस सब्सटेंस लिक्विड एट STP, अगेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 0.350 और 22.4. अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 7.84 लीटर आएगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल एट STP इज 22.4. ये आप ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. वट एवर न्यूमेरिकल्स आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले तो आप सारे जितने भी फॉर्मूलाज मैंने शुरू से लेके अब तक बताए हैं उसको सीक्वेंस वाइज आप उसको कॉपी में लिखिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा, याद करिएगा, न्यूमेरिकल्स को खुद कोशिश करिएगा. और ऑलवेज रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट. सो न्यूमेरिकल्स जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा. और हमेशा आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको मेमोराइज करिए, समझिए, ताकि क्वेश्चन पढ़ के आपको ऑटोमेटिकली तुरंत समझ में आ जाए कि मुझे इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगाना है. और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो में आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.